Namaste everyone. I'm Sapna Gupta and I'm here with my second lecture based on concept tangent and normal. And as we all know, it is very important application of derivatives, right? And in the previous lecture, we had studied about slopes of tangent and normal, that is, how can we write slopes of tangent and normal at a particular point, right? And today we will write equations of tangent and normal. But before studying about equations of tangent and normal, it is very important to know about the concept of slopes of tangent and normal. Okay, so that's why in my description box I have given link of my previous lecture. So with help of that link you can understand about slopes. Okay, so let's start our today's concept, and today we will write equations of tangent and normal. So let's come to our first question based upon equations of tangent and normal. So the first question is, yes, find equation of tangent and normal to this curve at the point 1 1. तो स्टूडेंट्स आपको एक कर्व गिवन है, आपको इस कर्व पर टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 1 1. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमें अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ओके, x1 y1 यहाँ पर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है और m है उस लाइन का स्लोप. सिमिलरली हेयर वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और टेंजेंट नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है. तो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है हमें 1 1 पर. तो इट मीन्स x1 y1 हमें गिवन है 1 1. अब हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप. टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 1. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होता है, dy बाई dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. सो 2/3 आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग x रेज टू पावर -1/3 प्लस 2/3 y रेज टू पावर -1/3 dy बाई dx एंड 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. एंड फ्रॉम हेयर dy बाई dx इट विल कम -x रेज टू पावर -1/3 अपॉन y रेज टू पावर -1/3. 2/3 से 2/3 कैंसल, or we can write it as y upon x raised to power 1/3. But we have to find at point 1 1. So at 1 1, yes, it will be, here we will put 1 1, 1 से 1 cancel and it will be 1 raised to power 1/3, 1 ही आ जाएगा. So dy by dx हमारे पास आ जाएगा -1. So this is slope of tangent. So slope of tangent हमारे पास आ गया -1. Slope of tangent is equal to -1. तो similarly slope of normal हो जाएगा. बिकॉज वी नो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का 1 हो जाएगा, डेट इज -1 अपॉन -1 प्लस 1. तो हमारे पास दोनों स्लोप आ चुके हैं, टेंजेंट का भी नॉर्मल का. पॉइंट 1 1 है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एट पॉइंट 1 1 y -1 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 इंटू x -1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 1 एंड इट विल बी x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0, राइट. सो इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज सिमिलरली, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, पॉइंट तो सेम ही रहेगा, y -1 x -1, ठीक है, पर स्लोप चेंज हो जाएगा. अब जो नॉर्मल का जो स्लोप है वो 1 आ जाएगा. So y -1 is equal to x -1, -1 से -1 cancel and this implies x is equal to y. This is equation of normal. Right students, so it is so simple. Now let's move to our next question. Question is, find equation of tangent and normal to the curve y is equal to 2 sin 3x at x is equal to pi/6. So similarly here we have to write equation of tangent and normal. But both x and y coordinates of point is not given, right? So first of all we will find y coordinate. तो here x coordinate is given, that is x is pi/6. तो सबसे पहले वो पॉइंट पूरा कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे. x pi/6 है तो we will put at the place of x pi/6. तो pi/6 पुट करने के बाद we can write here 2 sin square 3 pi/6. 3 pi/6 it will be pi/2 and sin 90 we know 1, तो it will be 2. So y will be 2. तो x pi/6 हो गया, y 2 हो गया, तो हमारे पास पॉइंट बन गया pi/6, 2. Right students, so it means we have to write equation of tangent and normal to the curve at this point, that is pi/6, 2, right. चलिए, तो पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं. नाउ वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई dx फाइंड आउट कर लेते हैं. तो dy बाई dx
that is 2 and here sin square 3x, पहले 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, and then derivative of sin 3x, that is cos 3x, and then angle का derivative, that is 3. Okay, so it will be, and 2 sin 3x cos 3x, we can write it is sin 6x. Okay, now at pi by 6 comma 2 पे find out करेंगे slope of tangent. So put at the place of x pi by 6, तो pi by 6 put करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, sin pi 0 होता है, तो slope of tangent आ गया 0. So therefore slope of tangent is equal to 0. Right. So first of all we will write equation of tangent. So equation of tangent is, yes, equation of tangent is, yes, y minus 2 and slope of tangent is 0. x minus pi by 6. तो सेम वही फॉर्मूला यूज किया, y minus y1 m x minus x1. ओके, इट विल बी 0. सो y इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट. तो अगर इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है y इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, तो अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल का स्लोप है वो नॉट डिफाइंड होगा, एंड इट मीन्स नॉर्मल विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. नॉर्मल किसके पैरेलल हो जाएगा? y एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, नॉर्मल y एक्सिस के पैरेलल होगा. अगर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो उसकी इक्वेशन है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू k टाइप. ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, वी कैन राइट डायरेक्टली एज that is x is equal to k. नाउ हमें k फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल की हमें इक्वेशन किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है? पाई बाय 6 2 पे. इट मीन्स जो नॉर्मल की जो इक्वेशन है उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. सो वी विल पुट एट द प्लेस ऑफ x पाई बाय 6 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू, और सिंपली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू पाई बाय 6. राइट स्टूडेंट्स, सो इट्स सो सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is, find equation of tangent and normal to the curve x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, theta is equal to pi by 4. So students, you can see it is a function in parametric form, और हमें यहाँ पे थीटा गिवन है पाई बाय 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पॉइंट पहले फाइंड आउट करेंगे जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है. तो जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ थीटा पाई बाय 4 इन x. सो cos पाई बाय 4 1 by root 2. सो इट विल बी x इज इक्वल टू a by root 2. So x will be a by root 2, and similarly we will put at the place of theta pi by 4. So sin pi by 4 1 by root 2. So y is equal to b by root 2. So finally हमारा जो point है वो बन जाएगा a by root 2, comma b by root 2. It means this is the point at which we have to find equation of tangent and normal to the curve, right? Okay, तो point हमारे पास आ चुका है. तो सबसे पहले tangent and normal की इक्वेशन लिखने के लिए दोनों के स्लोप्स पहले फाइंड आउट करते हैं. पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो वी नो पैरामीट्रिक फॉर्म में सबसे पहले x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेट इज माइनस a साइन थीटा, एंड dy बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू b cos थीटा, एंड देन वी विल राइट dy बाई dx, डेट इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा. ओके, एंड इट विल बी, यस, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी माइनस b अपॉन a cot थीटा, बट वी हैव टू फाइंड एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. सो cot पाई बाई 4 1. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी माइनस b बाई a. So this is slope of tangent. So what will be slope of normal? Yes, तो slope of tangent हमारे पास आ चुका है minus b by a. So from here slope of normal, yes, it will be a by b. Okay, तो slopes हमारे पास है, point हमारे पास है. Now we can easily write equations of tangent and normal. So first of all, equation of tangent is, yes, y minus b by root 2. ओके, स्लोप कितना है? माइनस b बाई a, x माइनस a बाई रूट 2. सिंपली इसको बस सॉल्व कर लेते हैं. तो रूट 2 यहाँ से एलसीएम आएगा, रूट 2 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा. रूट 2 y माइनस b इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, रूट 2 x माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई a रूट 2 y माइनस a b इज इक्वल टू माइनस b रूट 2 x प्लस a b. सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी, येस, x इट विल बी b रूट 2 x प्लस a रूट 2 y इज इक्वल टू a भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, डेट इज़ 2ab. और हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2ab. तो 2ab से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी x अपॉन a रूट 2 और y अपॉन b रूट 2 इज इक्वल टू 1. और सिंपली वी कैन राइट x अपॉन a plus y upon b is equal to root 2, right? So student, this is equation of tangent, and in this way we can write equation of normal also, but the difference will be here we will put at the place of slope of tangent we will put slope of normal.
that is at the place of minus b by a, we will put a by b, right? And then after simplification, we can write equation of normal, right? Now let's move to our next question. Next question is, find equation of tangent to this curve which is parallel to the line. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है. तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि कर्व की इक्वेशन गिवन है और जिस टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है. तो अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, यस, क्योंकि टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, डेट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, डेट इज +4 हो जाएगा, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई 1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया 4. ओके, सेकंड थिंग हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पॉइंट हमारे पास नहीं है तो पॉइंट कैसे आएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास 4 आ चुका है, डेट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 4, राइट. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व से dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, उसको 4 के इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा पॉइंट. उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x प्लस 3 dy बाई dx एंड 3 का डेरिवेटिव 0, सो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3. एंड नाउ पुट एट द प्लेस ऑफ dy बाई dx माइनस 2x अपॉन 3 एंड फ्रॉम हेयर यस x इज इक्वल टू यू कैन सी माइनस 6, तो x माइनस 6 आ गया. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट at the place of x minus 6, so after solving we will get 36 plus 3y is equal to 3 and from here 3y is equal to minus 33, so y is equal to minus 11. तो हमारे पास पॉइंट आ गया, वेरी सिंपल. तो पॉइंट हमारे पास आ चुका है -6 minus 11, इट मीन्स एट दिस पॉइंट वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और टेंजेंट का स्लोप भी हमारे पास है. नाउ इट्स वेरी सिंपल, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 डेट इज y प्लस 11 हो जाएगा, 4 स्लोप आ गया, x माइनस 6 x प्लस 6 एंड वेरी सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डेट इज 4x प्लस 24 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 4x माइनस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कंडीशन पैरेलल की थी, तो इस क्वेश्चन में कंडीशन है परपेंडिकुलर की. ओके, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे क्योंकि जो टेंजेंट लाइन, जिस टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है. ओके, एंड वी नो जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, अब टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन के टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल होगी. ये लाइन किसके पैरेलल होगी, नॉर्मल के. तो जो इसका स्लोप होगा वही नॉर्मल का स्लोप होगा. तो एक काम करते हैं, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेते हैं, वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा. तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, यस, स्लोप ऑफ नॉर्मल डेट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डेट इज प्लस 15 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 3 आ गया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल डेट इज -1 अपॉन 3. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1/3 एंड नाउ वी कैन इजिली राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप हमारे पास आ चुका है, अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू -1/3. तो सबसे पहले कर्व की इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे dy बाई dx, सो इट विल बी 2x माइनस 2. सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 6x minus 6 is equal to -1 and from here 6x is equal to +5 and this implies x is equal to 5/6. तो x तो हमारे पास आ गया 5/6 और यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, डेट इज़ 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, टेक एलसीएम 36, इट विल बी 25 minus 60 plus and it will be, yes, it will be 36 7 जा 252 and finally इसको solve कर लेते हैं. So it will be 252 and plus 25, okay, 277 minus 60, it will be 217/36, 217 upon 36, right. तो ये आपके पास आ गया y, okay. And now it's very simple. बस अब आपने क्या करना है, पॉइंट आपके पास आ चुका है, डेट इज 5/6, 217/36 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है -1/3. सो नाउ वी कैन वेरी सिंपली राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज
यस y माइनस 217 बाय 36, स्लोप हमारे पास है -1/3, x माइनस 5/6, so it will be 36y minus 217. Okay, and after taking LCM, yes, it will be -1/3 and it will be 6x minus 5/6, that is it will be 18. और यहाँ पे हमने 36 LCM लिया था, तो 18 2 ओके, और वो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज़ 36y minus 217. ठीक है, 18 2 और यहाँ पे -2, डेट इज़ -12x and plus 10, and finally after simplification equation will be, yes, 12x plus 36y minus 227 is equal to 0, right? So it's so simple. Now let's move further. So next question is, so equation show that equation of tangent to this ellipse, that is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 at x1 y1 is x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1. हमें इसमें शो करना है कि इस इलिप्स के जो टेंजेंट की इक्वेशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये है, राइट? तो जो पॉइंट तो हमें गिवन है, बस हमें सिंपली पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो 2x अपॉन a स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर dy by dx is equal to 0, and this implies dy by dx is equal to minus x upon a square upon y upon b square. तो b square ऊपर चला जाएगा and y नीचे, and we have to find at x1 y1. So at x1 y1 it will be minus b square x1 upon a square y1. तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. पॉइंट हमारे पास है ही. नाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो आपके पास ये आनी चाहिए. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, यस, y minus y1 and slope is minus b square x1 upon a square y1 into x minus x1 cross multiply. So it will be a square y1 minus a square y1 square is equal to minus b square x1 plus b square x1 square. ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं. सो इट विल बी x1 b square plus y1 a square इज इक्वल टू बी स्क्वेयर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर. लेकिन हमें आंसर जिस फॉर्म में देना है, ठीक है, उसी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर b स्क्वायर. तो a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इट विल बी x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर एंड इट विल बी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. बट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा यहाँ पर 1 आना चाहिए, मतलब ये पूरा होल एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए. तो लेट्स सी ये 1 के इक्वल कैसे होगा. हमें जो टेंजेंट की एलिप्स की जो इक्वेशन लिखनी है वो हमें लिखनी है एट x1 y1 पर, x1 y1 पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं वो पॉइंट कर्व पर ही लाई करता है. तो ये x1 y1 इस कर्व की, डेट इज एलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. डेट इज अगर हम x और y के प्लेस पर x1 y1 पुट कर दें, सो इट विल बी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विल बी 1. डेट इज x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विल बी 1. सो फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट दिस लाइन टचेज दिस कर्व. इट मीन्स वी हैव टू शो कि ये जो लाइन है इस कर्व की टेंजेंट लाइन है. ओके, एट पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेज y एक्सिस. पॉइंट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जिस पॉइंट पे हमें ये शो करना है कि ये इस कर्व की टेंजेंट लाइन है, वो जो पॉइंट है एट दैट पॉइंट कर्व क्रॉसेज y एक्सिस. तो कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है. और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे उनके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0. तो x 0 होगा. तो अगर इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे तो e की पावर 0 1, तो y b हो गया. तो पॉइंट तो हमारे पास आ गया 0 b. नाउ इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट हमारे पास आ चुका है. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. सो dy बाई dx इज इक्वल टू b एक्सपोनेंशियल का e रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन ए एंड देन माइनस एक्स अपॉन ए का माइनस 1 अपॉन ए. बट वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 b. तो पुट एट द प्लेस ऑफ x 0, e की पावर 0 1. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया माइनस b बाई ए. एंड इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट आपके पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है. इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि यही आएगी. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस बी, स्लोप है माइनस b अपॉन ए, x माइनस 0. सो इट विल बी ay माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स. और we can write xb plus ay is equal to ab. Divide both sides by ab, so it will be x upon a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एंड स्टूडेंट्स यही आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इन दिस वे वी कैन राइट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो इट्स ऑल अबाउट आवर टूडेज कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट angle between two curves, right? So till next lecture, stay safe. Thank you.